very crisp English. I was impressed that it's a very good English, some literary English I have read in this issue. And of course, Gujarati article, some 3 or 4 articles are there, in Gujarati also. I was really surprised happily to read a quotation by Business Team. Somebody here reads Goodwill Business Team or has found something that the limits of my thinking is limits of my language. And even Bertrand said, either existence, coexistence or no existence. Many students have written well, and I know that all the teachers might have pushed them or helped them a lot to write things like this. MIT itself is a confluence of almost all the states in India. There must be students and teachers from many states of India. So coexistence is here. The word coexistence shows that we live in the same need that is in Gujarati, Hindi. And coexistence leads to co-living. Actually, co-living is the result of coexistence. Many times there is coexistence, but not co-living. Many facets of coexistence is described in this magazine. Well, in Indian philosophy, the word for coexistence or co-living is driven by a concept called Sahishnutta. If you know the word Sahishnutta, what is the English of that word, Sahishnutta? Tolerance. It is not tolerance. Tolerance means, well, I tolerate you. I don't like you, but I tolerate you. So many times I give example that a bahu in a house tolerates the sasu. There is a coexistence, but fight within. It's a cold war going on many times. But Sahishnutta is accepting the other as the other is. And you know, when we are accepted by others as we are, whatever we are, that leads to amity actually and love. By the way, my PhD is on love and relationship in education. So I have read and written a lot about this. Sahajivan is the result of Sahishnutta. Sahishnutta, we accept all. We don't fight with their views. घर में ऐसे लोग होते हैं कि जिसकी कोई भी बात हम मानते नहीं हैं, लेकिन फिर भी we love them. In coexistence, if you are amicable, then you can go to living together. But addressing such an issue of coexistence is really a good idea, very good idea, and I hope that when I entered this room and saw you all in this room sitting like this, I was reminded of a sentence by John Dewey. John Dewey was a philosopher in America. He was a pragmatist. And he said before so many years, around say 1860, 1870, that in a school class, the students are like butterflies pinned on the desk. The students are like butterflies pinned on the desk. નિશાળમાં છોકરાઓ પાટલી ઉપર ચોંટાડેલા પતંગિયા જેવા લાગે છે. ગુજરાતીમાં સમજાય છે? અહીંયા એવા કેટલા લોકો છે કે ગુજરાતી સમજાતું નથી? આટલું તો સમજાય છે.
I'll be using Gujarati very sparsely. Mainly will go in English or Hindi. But happy to see people raising their hand. I ask in Gujarati also. So I don't like lecturing, and we know that lecture is the worst method possible on this earth for at least learning and teaching. And normally in the classroom, there is a lot of teaching. Learning is very little place, or perhaps we don't know what is learning. So I will try not to lecture, and I will not be impressed by my introduction given here, nor should you, because we all are learners. I will try to think aloud with you. We will be working together. It will not be that I speak all the time and you listen, and then while you are listening, there is a lot of space for thinking so many things. But when we are working, they are all here. Why this? Why the topic is practicing human learning in the classroom? Why the word human is in this title? Can you tell me? Teacher and student both are human. We're not only teaching them the knowledge or anything, but we are making them humans. We are giving them the values also. Okay, therefore, yeah, please. Because here we are not only the students are studying, but even we also learn from the students. Therefore, human is there. Okay, anyone else? Why human? We are present with all our emotions here. Without emotions, nothing can be done. Right? In the classroom, it's just like that. And it's two-side also. It's not the objective things we are teaching, but the students are also humans. They have the chance and possibility to say their things also. Okay. Well, when I put the word human learning, it means that learning has connection with human being. Even animals learn, but generally it is said that animals are trained, human beings are educated. Animals are trained. एनिमल की ट्रेनिंग होती है, ह्यूमन बीइंग का एजुकेशन होता है. We are presently, last some say 15-20 years, in such a bad time where, as she said, that students are also human beings. But I would like to say the reverse way. Human beings are also students. Generally, we treat students not as persons, but as role, ROLE. They are playing the role of student. They are not actually students. They are doing that work presently. Basically, they are human beings. Basically. But do you believe that? क्या हमें पता है कि वो ह्यूमन बीइंग पहले है और बाद में स्टूडेंट है? यहाँ there are so many mothers here, mothers or potential mothers, would-be mothers. Just tell me very frankly कि जब आप अपने बच्चों के साथ बातें करते हैं, उन बातों में से कितने % बातें उनकी पढ़ाई के सिवा बाकी की होगी? कितनी बातें पढ़ाई की होती है? कितने, how many % you talk about only their education, and how much time do you talk to your children which is not about education? कितना होता है? 80 to 90. 80 to 90% of our talk, when mothers talk to the child, is about their education. Yeah. No, reverse. In some cases, generally, you are right. See, this may not be applicable to each and every one, but to all it might apply when we generalize. And this is the percentage I get when I ask question to people in such seminars. 80 से 90% हम पढ़ाई की बात करते हैं. So we said
like the opposite. We're talking other than education. All of you. Yes. Fathers and 10 to 20%. The general topic, because we think that they are born to school. उसकी schooling ही होनी चाहिए. Now, if you want to prepare them as human beings, we should talk to them like human beings. But बात करते हैं कि they are students only. क्लास में जाते हैं, बात करते हैं स्टाफ रूम में. मेरे क्लास में 58 स्टूडेंट्स हैं. आज स्टूडेंट्स ठीक तरह से नहीं थे, लेकिन कभी हम ऐसा नहीं कहते कि मेरे क्लास में इतने बच्चे हैं या इतने ह्यूमन बीइंग्स हैं, और इतने ह्यूमन बीइंग हैं तो उनके साथ में कैसे पेश आऊं. और जो भी टीचिंग चल रही है, जो भी चल रहा है, हम कहते हैं कि वी ट्राई टू क्रिएट ह्यूमन बीइंग्स, बट वी कंसिडर देम स्टूडेंट्स. Now there is a proverb in English that you cannot train a horse by shouting and then expect him to obey the whispers. हम शाउट कर करके उनको ट्रेन करते हैं और फिर ऐसी अपेक्षा करते हैं कि हमारी विस्पर्स उसके कान में फुसफुस आए तो भी वो समझ जाना चाहिए. ऐसा नहीं होता. अच्छा, आप लोग किसके ऊपर ज्यादा विश्वास करेंगे? Whom you have more trust and faith for, say, something, giving something, or for security? A person from the village or a person from city? शहरी आदमी से या गांव के आदमी से, किसके ऊपर ज्यादा विश्वास होता है? अच्छा, जो भी करप्शन होता है, करप्शन करने वाले ज्यादा एजुकेटेड है कि अनएजुकेटेड है? कितना आत्मविश्वास है? हम ही हो सकते हैं, दोनों चलते हैं. ज्यादा एजुकेटेड तो तरीके ज्यादा बताओ. ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, यही है. और एजुकेटेड मीन्स डिग्री वाले. तो अच्छा है कि अभी हमारे वहाँ 65-70% भी एजुकेशन है. 100% हो जाएगा तो क्या होगा? ये भी सोचने की बात. वेल, तो मुझे लगा कि थोड़ी बातें ह्यूमन बीइंग के बारे में भी हो जाए कि हाउ टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ our work from students to human beings. सुना हुआ निदा फाजली का एक शेर है कि घर से मस्जिद क्या आगे है बहुत दूर, चलो यूं कर ले. एक रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए. कोई रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए. घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए. तो क्लास में बच्चे हंसते हैं, कम हंसते हैं, कितनी देर हंसते पता नहीं मुझे, लेकिन when we treat them as persons, they'll be really happy. Fine. Let us start with one activity. As I told you that I will not be lecturing for a long time. It has been almost 12 minutes I have been lecturing, very long time. अभी हम क्या करेंगे कि इसमें से किसी को चाइनीज आती है? चाइनीज नहीं, किसी को नहीं. तो अब हम सब लोग चाइनीज बोलेंगे, ठीक है? सभी बोलेंगे, चाइनीज बोलेंगे. अकेले को नहीं बोलना है, आपके साथ जो बैठा है उनके साथ बातें करनी है, लेकिन चाइनीज में करना है. और कम से कम 1 मिनट तक करना है. ज्यादा हो जाएगा 1 मिनट? क्या हुआ? अच्छा, पहले मैं बता दूं कैसे करेंगे. मैं और प्रकाश में बातें करेंगे. तो आप सुन लो 1-2 उसके एग्जाम्पल, बाद में आपको करना है. मैं जो भी कहूँ आपको उसका जो कुछ करना है आप जवाब दें, लेकिन चाइनीज में बोलना है.
चिंगा जो हा हुला तो जा पावा हुंदरारी दूसरे लोग जिस वक्त हैं to refresh, okay. Yes. To activate our mind. To activate the minds, right? Fine. Yeah. Just involve us in the learning process, and moreover, हम लोग बोलते बच्चों को, we tell them speak in English only, Okay. but Speaking. they don't understand how would they do it. Okay. Sir, to express even if you don't know the language. To express even if you don't know the language. So to differentiate both the conditions, when noisy and when silent. What is noise and what is silence? इसको करने के लिए good thinking. Yeah. To pay respect to languages. To respect languages. What is the moral of the story? Fine. See. Generally, our brain is stitched by the language we speak. जो भी शब्द हम जानते हैं उसके हम गुलाम हैं. उससे ये हमें पता चलता है कि इसका मतलब यही होता है और यही होना चाहिए. तो उसको अलग करने के लिए so that we can go beyond the language. It is going beyond the language. इसको जिब्रिश कहते हैं. एक ध्यान की विधि है. अभी जो करिए जिब्रिश. इससे हम हमारी लैंग्वेज से अलग होते हैं एंड देन वी आर एबल टू सी व्हाट इज बियॉन्ड लैंग्वेज. हाँ जिब्रिश जिब्रिश ये डबल पी जिब्रिश. ये तो और ये बात इतनी महत्व की नहीं है कि ये ध्यान है, लेकिन महत्व की बात ये है कि when we teach or when we learn, we are teaching the brain, right? When I'm addressing your brain. किसी को लगेगा कि ब्रेन की बात हो रही है, इसमें इमोशन कहाँ आता है? इमोशन तो हार्ट में होता है, हार्ट में नहीं होता है. You know, हार्ट को सेंसेशन है ही नहीं. अगर कोई आके हार्ट काट दे तो पता ही नहीं चलता है कि काट दिया. There is no sense. It's a pump only. Heart is a pump. जो होता है वो तो इधर ही होता है. So ये जो ब्रेन है जो लर्निंग करता है, जो टीचिंग करता है, तो ब्रेन कैसे लर्निंग करता है वो पता कैसे चलेगा? In last say 10-15 years from almost 2000, brain based learning and learning based on neuroscience, neurophysics is there. हमें पता नहीं है कि ब्रेन बच्चों का कैसे काम करता है. We don't teach that in BN or MA. How brain learns. आप जब सिखाते हैं तो आपको पता कैसे चलता है कि इसे सिखाना चाहिए कि नहीं सिखाना चाहिए? कैसे पता करें? पता तो है कि ब्रेन कैसे रन करता है. So what happens? Suppose you have got Mercedes Benz कार और रोल्स रॉयस आपके पास है, तो क्या आप उसकी सर्विस करने के लिए मारुति वालों को देंगे? नहीं देंगे. क्यों नहीं देंगे? तो देंगे तो क्या होगा? यही क्लास में हो रहा है. क्लास में यही हो रहा है. We don't know how human brain learns. और हम जो भी कह रहे हैं पता नहीं कहाँ जाता है. We are not able to utilize the brain. तो उसको यूटिलाइज करने के लिए आपने जो की इट्स ए ब्रेन एक्सरसाइज. एक्चुअली इट्स ए ब्रेन एक्सरसाइज. और न्यूरोफिजिक्स, न्यूरोफिजियोलॉजी और न्यूरोसाइंस में कहते हैं कि इफ यू हैव at least 5 minutes of brain game or brain gym in the classroom in one period, then after doing that,
after doing exercise this, students cannot choose not learning. Students cannot choose not learning. मतलब वो नहीं सीखना पसंद नहीं कर सकते. They have to learn. बाहर जाता ही नहीं है ब्रेन में, होता ही नहीं, उधर कंसंट्रेशन हो जाएगा. तो ब्रेन जिम शुड बी वन ऑफ द इनपुट्स फॉर ह्यूमन लर्निंग. और ह्यूमन ब्रेन के बारे में भी हमें सीखना चाहिए. काफी समय से मैं ये काम कर रहा हूँ कि ब्रेन एक्टिविटीज कैसे क्लासरूम में होती है. और हमारे प्राइमरी स्कूल में है, प्राइमरी स्कूल है, तो उसके जो टेक्स्ट बुक है, गुजराती टेक्स्ट बुक आपने पढ़ केकाराव में आगू है, कलशोर केकाराव, वो सब हमने बनाए हैं. तो उसमें ब्रेन जिम रखे हैं, सभी में रखे हैं. इट इज इनबिल्ट इन द टेक्स्ट बुक. गवर्नमेंट के साथ थोड़ी कुश्ती करनी पड़ी, लेकिन हो गया. सो ब्रेन जिम इज इन्वॉल्व इन द इंस्ट्रक्शंस and some of the games given in the textbook of class 3, 4, 5, Kalshor, Kallol, Ekarav, all these books. If you want to see that, you can see that those books. तो ये हुआ कि जहाँ ह्यूमन ब्रेन सीखने की शुरुआत करता है. अब मैं जो कहता हूँ कि ह्यूमन ब्रेन, तो ब्रेन तो दूसरों के पास भी होता है, एनिमल्स के पास होता है. What's the difference? Do you know any of you? Human brain और दूसरों के ब्रेन में what's the difference? Thinking है और कुछ rationality, emotions है. और forebrain highly developed. Is highly developed. What do you mean by developed? से ऐसा है कि ब्रेन हमारा बड़ा है. बड़ा है मतलब वेट एंड साइज. ऐसा है कि अगर हमारा ब्रेन निकाल दें सर्वे से और उसको फ्लैटन किया जाए, उसको ऊपर मार के उसका कागज बनाते हैं, तो A4 साइज के 4 कागज होते हैं. डू यू नो द थिकनेस ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स? थिकनेस कितनी होती है? एनीबॉडी? ब्रेन की थिकनेस, जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स, हम चिंपांजी बने और जो मनुष्य बने तब से जो होता है उसको सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं. जो नया ब्रेन है मनुष्य का, उसकी थिकनेस 2 to 3 मिलीमीटर्स है. मिलीमीटर्स, नॉट सेंटीमीटर्स. 2 to 3 मिलीमीटर्स ओनली. उसमें से 4 A4 साइज के कागज होते हैं. अगर चिंपांजी या ओरांगुटान का ब्रेन ले लें, उसको फ्लैटन किया जाए, उसमें से कागज बनाया जाए, तो A4 साइज का एक कागज बनता है. अगर मंकी, जो यहाँ मिलते हैं बंदर, उसका ले ले तो उसके ब्रेन में से एक पोस्ट कार्ड बनता है. और चूहे का ब्रेन ले ले तो उसमें से एक पोस्टेज स्टैम्प बनता है. और डिफरेंस क्या है कि सभी एनिमल्स के पास जो ब्रेन है, इट्स ए डेडिकेटेड ब्रेन. आपको पता है कि डेडिकेटेड स्विच आती है कैमरा में, डेडिकेट होती है. मतलब उतनी जगह है कि जितने काम करने हैं उतने फंक्शंस हैं, उससे ज्यादा नहीं है. हमारे ब्रेन में खुली जगह काफी है. ब्रेन प्लास्टिसिटी है, इतनी सारी जगह है कि काफी काम कर सकते हैं. एंड हाउ मच ब्रेन डू वी यूज जनरली? 10-15%. अभी नए लोग जो नए हुए हैं स्टडी, दे गो टू 20%. हम 20% तक यूज करते हैं. जितना भी ब्रेन यूज करते हैं उसका कलर बदल जाता है. जब ब्रेन यूज करते हैं कलर, जैसे कि हम इस डोर का उपयोग करते हैं तो नीचे चल के घिस जाता है ना, उसी तरह जो ब्रेन यूज करते हैं उसका कलर घिस जाता है. लेकिन काफी लोग ऐसे भी होते हैं कि ज्यों की त्यों धरी दुनी चदर गया है, जैसी भी चदर थी आप इसलिए नहीं. तो हमें पहले ये देखना चाहिए सबसे पहले कि ये ह्यूमन बीइंग वो क्या है. पढ़ा रहे हैं ह्यूमन बीइंग को. आप कहते हैं कि हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग के बारे में, लेकिन ह्यूमन बीइंग क्या है वो पता है क्या?
तो हम पहले एक स्लाइड देखेंगे। वैसे मैंने किताब पढ़ा है किसी ने? युवल हरारी है, उसने लिखा है होमो सेपियन, दैट इज इट इज द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। पढ़ लीजिए सर, अभी उसका गुजराती भाषांतर भी आपने पढ़ा। हाँ, उसका दूसरा जो है सिक्वल है वो है होमो ड्यूस। अभी जो सेपियन है वो ड्यूस मतलब देवी हो रहा है, वो भी बहुत अच्छा किताब है। और उसका सब टाइटल है ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर। कैसा है? ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर। फ्यूचर का हिस्ट्री होता है, ये है हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर। तो पढ़ना कभी, उसका गुजराती भी राज गोस्वामी ने कर दिया है इसके पास। तो व्हाट मेक्स एस्थेटिक सेंस, ये एस्थेटिक सेंस है दूसरों में नहीं होती। सौंदर्य जो भी हमने एक उसका स्पेशल इशू किया था, सौंदर्य वाला। अफेक्ट मत लिखो, आपको शेयर कर देंगे बाद में, डोंट राइट। करना ये है कि ये जो 7 दिए हैं उसमें से आपको ईच वन ऑफ यू प्लीज गिव द प्रायोरिटी। इसमें से मानो कि आपको 3 को देना है महत्व, तो कौन सी 3 बातों को आप महत्व देंगे? यू प्रायोरिटी 1 2 3 ये 7 में से अकॉर्डिंग टू यू आपके नोट में आप लिख लीजिए, वो प्रायोरिटी लिख लीजिए कि मेरे हिसाब से होमो सेपियन की जो प्रायोरिटी है मेरे मत में वो ये 3 है। आपको जो भी लगे, सबके अर्थ पता है। अफेक्ट मतलब भाव हमारे में अफेक्ट होता है, ये फीलिंग और इमोशन है वो उसके डेरिवेटिव है, लेकिन भाव इज द मेन थिंग। अफेक्टिव डोमेन होता है आपका, बीएड पढ़ा है तो इसमें पढ़े होंगे आपने कि कॉग्निटिव अफेक्टिव साइकोमोटर होता है। अफेक्ट मींस भाव। किसी ने कहा था कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वी आर इन सम सॉर्ट ऑफ भाव। अभी भी कोई भाव आपके मन में चल रहा है, बोर्डम का हो सकता है, इंटरेस्ट का हो सकता है, पैशन का हो सकता है। कल्चर होता है हमारा, सोशियोलॉजी होती है, मधुमक्खी की सोशियोलॉजी होती है, गाय भैंस की होती है, कुत्तों की सोसाइटी होती है, लेकिन कल्चर नहीं होता। प्लास्टिसिटी एंड हाई ग्रेड प्रोसेसिंग पोटेंशियल वो है। क्या है वो प्रोसेसिंग? प्रोसेसिंग क्या है? समझना, कोई चीज होती है तो उसको माइंड में प्रोसेसिंग होती है। ओके। इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी ये प्राणियों में होती है। आपको पता है कि जो होती है सुगरी, क्या बोलते हैं उसको? वीवर बर्ड कितना अच्छा नीट बनाती है उसका घोंसला, लेकिन वो 50 लाख साल से वैसा ही बनाती है। और ह्यूमन बीइंग ने मकान बनाना शुरू किया, बिल्डिंग बनाना, कितने नए बनते हैं। अभी बुर्ज खलीफा भी तो लाइन करके भी आया है जो 170 किलोमीटर लॉन्ग होगा और ओनली 200 मीटर वाइड होगा। फिर लैंग्वेज क्रिएशन एंड यूज, हम लैंग्वेज क्रिएट करते हैं। प्राणियों के पास लैंग्वेज नहीं होती, क्या होता है उनके पास? साउंड होता है, सब कोड होते हैं। जैसे कि डॉल्फिन है तो 200-300 इनके पास कोड है, चिंपैंजी के पास है। सिखाओ तो सीख सकते हैं। एक कोको करके एक था चिंपैंजी, वो 300 शब्द सीख गया था, लेकिन सीखा था मतलब only 300 in certain situation only. And longing for freedom, हम सब लोग फ्रीडम को चाहते हैं। और अगर आप देखें तो जितने भी सिस्टम्स हैं सभी सिस्टम ज्यादा फ्रीडम की ओर ले जा रही है। सभी सिस्टम्स मोर एंड मोर फ्रीडम वी विश। अभी मैरिज भी कम होने लगे हैं, लिव इन रिलेशनशिप आने लगा, वो मेन स्ट्रीम हो जाएगा। ऐसा कहते हैं कि विद इन 30 years इट विल बी मेन स्ट्रीम ओनली। तो फ्रीडम में जाता है सब कुछ। आप क्लास में कितनी फ्रीडम होती है पता नहीं है, फ्रीडम क्या है वो भी देखेंगे। अच्छा, आपने 3 दे दिए,
इसमें से प्रायोरिटी एस्थेटिक सेंस मीन्स सौंदर्य दृष्टि। हाँ, कुछ देखते तो मुझे सुंदर लगता है और हम सुंदर होने की ट्राई करते हैं। जैसे कि आप बालों में फूल लगाती हैं, क्यों? अभी किसी कुत्ते को क्या मंकी को लिपस्टिक लगाती हैं आप। लिपस्टिक के बारे में बख्शी का एक स्टेटमेंट अच्छा है, अगर आप सुने तो। ये मेरा नहीं है, बख्शी का है। तो बख्शी हमारे बहुत बड़ा ऑथर है। उसने कहा था कि स्त्रियां अपने नाखून और होठों पे कलर करके ईश्वर की गलतियां सुधारना चाहती है। जो गलती की है सुधारने के लिए, लेकिन ये सौंदर्य कि ज्यादा सुंदर दिखने। एवरीबडी ट्राइज फॉर दैट। कितने फैशन चलते हैं, कितना बदल जाते हैं। अच्छा, आपको 3 कौन से अच्छे लगे? कोई 2-3 लोग बता दो। 3 प्रायोरिटीज। पीछे वाले, पीछे बोलिए। कल्चर एंड फ्रीडम। फ्रीडम, कल्चर एंड क्रिएटिविटी। Longing for freedom, plasticity and high grade processing potential of brain, and imagination and creativity. Okay. 7th, 4th and 5th. 4th and 5th. Okay. Last three. One more. Last three. लैंग्वेज क्रिएशन यूज। ओके, तो देखो ये इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी बार बार आ रहा है, प्रोसेसिंग आ रहा है। अब आप बताओ कि क्लास में इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी को कितना स्पेस देते हैं? कितना देते हैं? कितना देते हैं? होता है? अगर कोई स्टूडेंट अपनी ओर से कोई अलग तरीके से बोलता है, दिखता है, तो हम क्या करते हैं? अच्छा, आपके पेपर से ऐसे होते हैं कि जिसमें वो खुद अपना कुछ लिख सके? कौन सी कक्षाओं में होते हैं? कितने परसेंट होते हैं? इसमें कितना होता है वो खुद का लिखते हैं, जो कि कभी कहीं पढ़ा नहीं है, जो ये मोबाइल में नहीं है? ऐसा क्लास में क्या होता है जो मोबाइल में नहीं? मानो कि सरकार है, गवर्नमेंट क्या वो आपको छूट दे दे कि आप एग्जाम में मोबाइल खुला इंटरनेट खुला रख सकते हैं, तो कोई फिट होगा? किसी को 90% से कम मिलेंगे जिसको सर्च करना आता है, इसमें से कुछ नहीं हो सकता है? क्या सभी के क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं? मोस्ट ऑफ क्या लगता है? क्या ट्राई करना नहीं आएगा, रिलेट करना। अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ लर्निंग नॉलेज वाले तो कर सकते हैं, लेकिन रिलेटेबल और एप्लीकेबल बेस्ड कैसे होता है? क्वेश्चन कैसे? क्वेश्चन बताइए, एक क्वेश्चन बताइए। जैसे अगर हम बताइए, आप बताइए। सर, जैसे लैंग्वेज में है तो हम बच्चों की क्रिएटिविटी के लिए बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन देते हैं। जैसे कि इवन ऑनलाइन टाइम में बच्चे बहुत सारे सब्जेक्ट जैसे कि वो ऐसे नहीं ढूंढ पाते थे, बोलते थे कि हमें तो मिला ही नहीं कोई। कैसा क्वेश्चन बताइए। सर, जैसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। राइटिंग स्किल के बारे में हमने अगर दिया कुछ अनुच्छेद वगैरह लिखे तो ओके, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। कोई सिचुएशन दे दी कि कोई प्रॉब्लम है, कैसे सोल्यूशन? ऐसे क्वेश्चन कितने परसेंट होते हैं? 30% से ज्यादा नहीं होते। इंटरप्रिटेशन करते हैं, लेकिन ऐसा कितने होते हैं? देखो, एक कर सकते हैं हमने स्टडी किया है, इसके ऊपर डिसर्टेशन किया है कि लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर है बोर्ड एग्जाम के, उसमें से कितने क्वेश्चन हैं वो ऐसे हैं कि जो उनको उधर ही बनाना पड़ता है उत्तर, जो उत्तर पहले से दिया नहीं गया है कहीं भी, बहुत कम है 20% बोर्ड में। अभी करो, देखो, ट्राई टू एनालाइज दैट। लेकिन क्रिएटिविटी है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इमेजिनेशन सबसे ज्यादा है। अभी के विश्व में किसको ज्यादा तनख्वाह मिलती, पैसे मिलते हैं? कॉग्निशन वाले को या इमेजिनेशन वाले को? इमेजिनेशन वाले को, क्रिएटिव।
और हम वही पढ़ाते हैं जो इसमें लिखा हुआ है पहले से। जो ये मोबाइल है 2000 रुपये का आता है, तो हम बच्चों को मोबाइल बनाने की ट्राई कर रहे हैं कि आप जितना है इसमें आप कर लो, थोड़ा सा बाहर का आ जाता है। क्रिएटिविटी है वो थोड़ी सी अलग सी चीज है, लेकिन आपने सबको क्रिएटिविटी रखा अच्छा है, करेंगे कुछ। प्लास्टिसिटी ऑफ ब्रेन और प्रोसेसिंग, सी ब्रेन प्रोसेसिंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन लर्निंग। हम जो पूछते हैं या पढ़ाते हैं तो उसमें प्रोसेसिंग होता है, या वो उसको मदद करना है या तो समझ लेना है। एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनिंग समथिंग, तो वो तो टीचर ने एक्सप्लेन कर दिया है, वो एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर कर देते हैं, वो प्रोसेसिंग नहीं है। प्रोसेसिंग कुछ दूसरा होता है। अगर वो ये काम करते हैं तो हम कहेंगे कि ह्यूमन बीइंग है। कैसे पता चलता है? अभी करते हैं। अभी 10 मिनट है हमारे पास, हम 3 से 5 मिनट लेंगे काम कर रहे हैं। मैं एक प्रॉब्लम आपके सामने रखता हूं, उसके बारे में आपको थोड़ा सा देखना है, थोड़ा सा। मैं एक प्रॉब्लम बताता हूं, 2 प्रॉब्लम बताता हूं, उसमें से कोई एक प्रॉब्लम के बारे में आप लिखना है। क्या लिखना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम, और दूसरा व्हाट कैन बी द सॉल्यूशंस, व्हाट कैन बी द सॉल्यूशन। एक सिचुएशन है, पहली सिचुएशन, इट इज स्ट्रे डॉग्स, स्ट्रे काउज, रखड़ती हुई गाय है, गाय अपनी फरती हुई है, इधर उधर घूमती है। स्ट्रे डॉग्स, स्ट्रे काउज, स्ट्रे कैट्स, શહેરમાં રખડતી ગાયો, કૂતરાઓ, એનો શું પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ કરે છે અને સોલ્યુશન કયું હોઈ શકે? બીજું છે એ the invited speaker who loves mic and is boring. इन्वाइट स्पीकर को इन्वाइट किया है लेकिन बोरिंग है और माइक छोड़ नहीं रहा, तो प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? 2 में से एक ले लीजिए और उसके 4-5 प्रॉब्लम बता दीजिए और 4-5 सॉल्यूशन कर दीजिए। आपको अकेले को नहीं करना है, 2 लोग साथ में बैठ के बातें करके स्टार्ट मेकिंग नॉइज। वहां था तो इमेजिनेशन हो रहा है, इमेजिनेशन हो रहा है, वो तो अभी पता चलेगा। इमेजिनेशन लोग देखेंगे सब। कोलैबोरेशन था, बातें हो रही थी, प्लानिंग है, टू वे कम्युनिकेशन तो था, फाइन। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, हाउ टू डील विद अदर्स व्हेन दे योर थिंकिंग डजंट मीट ईच अदर। अच्छा नहीं, फिर भी तो आप सहिष्णु हो गए होंगे, इमोशंस भी आए, अंदर आते थे, ठीक है। अच्छा, हाँ, थिंकिंग थी। अब ये बताओ कि ये जो 5-7 मिनट, कितने मिनट हो गए? 5-7 मिनट हो गए। तो इतनी देर में आपको किसी को कोई दूसरे विचार आए थे? एनीथिंग एल्स देन दिस? ये लोग कब छोड़ेंगे, क्या करेंगे, आज खाने में क्या होगा? कोई विचार नहीं आए थे? मैंने मना किया था, तो फिर क्यों नहीं सोचा? एंगेज क्यों किया मैंने? ऐसा मैंने कोई दादागिरी तो नहीं की थी, फिर भी हमने क्यों नहीं किया? क्यूरियोसिटी। ओके, क्यूरियोसिटी इज वन थिंग, इंटरेस्ट, इन्वॉल्वमेंट, इनोवेटिव आइडियाज तो लेने थे, ठीक है। चैलेंज था कि हमको प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों चैलेंज भी था, टाइम वेस्ट भी था। ओके, मतलब कौन सी काम में सिंसियर होते हैं? अब आपको कहेंगे आपको 2 घंटे तक मुझे सुनना है, वेल द बेस्ट वर्ड इज चैलेंज। आपने चैलेंज को ले लिया, चैलेंज की तरह लिया और बच्चों की तरह आपका काम कर रहे थे कि नहीं करना है।
और दूसरा कोई और सोच में नहीं आ रहा था. Now when you are teaching your class, the students are present physically, but are you sure that they are present mentally also? क्लास में काफी मेंटल वर्कआउट होता है ना, वर्कआउट कर देते हैं, बात चलाई जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है कि वो सुन रहे हैं नहीं सुन रहे. एंड वी नो दैट कि आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं. वो जब आप बोलते हैं तो हाँ हाँ करते हैं, आपके स्माइल भी करते हैं कि अच्छा है, लेकिन दूसरा कुछ नीचे चल रहा होता है. ऐसा चलता है. लेकिन ऐसा जो आता है तो ब्रेन प्रोसेसिंग करने लगता है. जैसा कि आपने किया, मानो कि आप जब से पढ़ रहे थे तब से आपको ऐसा ही कुछ वंस इन अ वीक ऐसा ही कुछ मिलता रहता होता तो आप में क्या परिवर्तन होता, तो आप कैसे होते? सपोज यू हैव बीन डूइंग दिस फॉर many years and once a week, then what could have been your faculties? તો તમને શું શું આવડતું હોત? જુદા હોત કે નહીં? ઘણા લોકો અહીંયા ના હોત, બીજી જગ્યાએ હોત. તો પ્રોસેસિંગ કર્યું તમે. હવે ઇમેજિનેટિવ છે કે નહીં, બે ત્રણ જવાબો લઈ લઈએ. કોને બોલવા છે? સરસ. આ પહેલો જે સેકન્ડ પ્રોબ્લેમ હતો કે स्पीकर इन्वर्टेड स्पीकर विथ बोरिंग, उसको बंद करने के लिए क्या करोगे? ये इमेजिनेशन नहीं है. अभी देखते हैं, क्लैपिंग इज नॉट इमेजिनेशन, रियलिटी है. नो आंसर. सर टाइम वेस्ट हो रहा है तो उनसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं. फिर उनको कुछ सिचुएशन अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं कि आप इसका सोल्यूशन बताइए. आप उनको ऐसे कुछ अलग रास्ते पे उसको चला देते हैं. और कोई किसी ने एनीथिंग न्यू फेस एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज से बता. ऑडियंस है कोई? वी कैन आस्क फॉर द ब्रेक itself. ब्रेक गोइंग टू बी हैं, इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग कि ये सिचुएशन में अभी ऐसा ही रहे. बस दोस्ती करते हैं. इन्होंने हम बताया क्या करें. आप एक का सवाल है. तो इसमें आपने कोई इमेजिनेशन कहाँ देखा है? आउट ऑफ बॉक्स तो है नहीं, कुछ इमेजिनेशन है नहीं. सर हाँ यस, इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दे. इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दे. दूसरा कुछ नहीं. एक्टिंग करेंगे, कुछ हो गया किसी अभी दूसरा शुरू हो, कुछ नया बाहर बनेंगे, बाहर जाने का. चलो फिर से अभी अलग अलग करने लगे. अच्छा, अगर आप ये प्रॉब्लम आपके क्लास में आपके बच्चों को देते हैं तो उनके पास आपसे ज्यादा आंसर हो गए, कम हो गए? ये भी आपको विश्वास है? तो ज्यादा क्यों होंगे? आपको क्या हुआ? आपके ग्रेड को क्या हुआ? आपको देखो, चलो ये है कि हम लोग आहिस्ता आहिस्ता वी गो इन रट एक हो जाते हैं. एक ऐसा भी है रिसर्च की अगर कोई काम, एक ही काम आप 5-10 साल करते हैं तो फिर आप में उसकी अथॉरिटी, मास्टरी आ जाती है. कहते हैं मास्टर कभी भी क्लास में भेजो, चले जाएंगे, 5 क्लास ले लेंगे एक साथ. फिर 15-20 साल होते हैं तो आपको वो काम सबसे ज्यादा महत्व का लगता है. अगर विश्व में कोई सबसे अच्छा है तो टीचर का काम है. ऐसा काम इससे अच्छा हो नहीं सकता है, ऐसा बनने लगता है. और 20-25 साल हो गए तो फिर आपको वो काम पवित्र होने, आप साइंटिफाई कर देते हैं. सबसे पवित्र काम तो ये है. पता है नहीं ऐसा? पता है? अच्छा, मैंने ये पूछा था बच्चों से, बच्चों के साथ काम करता, मैं जब भी धर्मपुर जाता हूँ पढ़ाता हूँ क्लास में जाके, पहली दूसरी 5वीं 6वीं कक्षा में, तो बहुत मजा आता है. एक बच्चे ने कहा कि हम माइक में ऐसा प्रोग्राम करेंगे
कि उनको 1 घंटे का अगर टाइम दिया है तो बाद में इसको उसमें से शौक लगने लगे। कैसा लगता है? बहुत अच्छा है, बेस्ट है, माइल्ड शौक। मैं नहीं जाना चाहता लेकिन माइल्ड शौक कितनी अच्छी बात है। ये एक क्रिएटिव ऐसे क्रिएटिव आइडिया सबसे। सर एक रीजन ये भी कि हम लोग थोड़े डिसिप्लिन्ड और मैनरफुल साउंड करने के लिए भी बहुत एक्चुअल आंसर्स दे रहे हैं, बच्चों की तरह खुल के नहीं बोल रहे। लेकिन ऐसा क्यों हो गया? ऐसा हो क्यों गया? ये अच्छा है, वैसे गुड लाइफ, क्रिएटिव लाइफ इन द वर्क। या फिर नया सोचना नहीं है, चलने तो जो भी चलना है वो। सो क्रिएटिविटी, वो आप कभी भी बच्चे की बात करते हैं तो कहते हैं कि बच्चों में क्रिएटिविटी होती है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे जाते हैं और टीचर बन जाते हैं तो खत्म हो जाती है। क्यों खत्म हो जाती है? क्योंकि हम इस तरह का काम करते हैं, एग्जाम ऐसे होते हैं कि उनको यही लिखना, अगर ये लिखोगे तो इतने मार्क्स आएंगे, ये नहीं लिखो तो ये नहीं होगा। हाँ, लेकिन क्यों भगाते हैं? उनको भगाते क्यों? उनको भगाते क्यों? बात करेंगे उनके ऊपर, पर अच्छा है। तो अभी 12:05 ज्यादा हो गए हैं, तो मुझे शौक नहीं लगा अभी तक। अच्छे बच्चे सर, तो जब आपके क्लास में बच्चे आर प्रेजेंट फिजिकली एज वेल एज मेंटली, उसके लिए पेडागोजी में, क्लासरूम टीचिंग में एक शब्द है, जैसे फ्रेज, इट इज एन आहा मोमेंट फॉर द टीचर। आहा मोमेंट। सो थैंक यू फॉर गिविंग मी आहा मोमेंट, आपने मुझे दिया। और विद दिस पॉजिटिव नोट, आहा मोमेंट, वी हैव 10 minute break. We break for 10 minutes. के बारे में भी बच्चों को कहना है कि हाउ टू क्रिएट अ फ्यूचर, कैसा होना चाहिए उसके बारे में सोचो। सो फ्यूचरोलॉजी वाज द सब्जेक्ट, ऐसे अभी तो कहीं पहले भी नहीं आया। देन आई कन्वर्टेड दैट सब्जेक्ट इनटू फ्यूचरिस्टिक्स। अभी चलता है फ्यूचरिस्टिक्स कहते हैं। फ्यूचरिस्टिक्स इज मैजिकल फ्यूचर, इसमें कभी कहना आता है। ओके, रीजनिंग आप जानते हैं, रीजनिंग तर्कनिष्ठा, लॉजिकल थिंकिंग, seeking the unknown. Only human beings seek unknown. कुछ unknown है, there is something mystery. The mystery is inbuilt in the universe. वो क्या है हम समझना चाहते हैं। तो काफी लोग जो बातें करते हैं, ईश्वर की बातें करते हैं, तो किसने बनाया होगा, क्या क्यों होता है, अननोन है, उसको हम ढूंढते रहते हैं ना, उसके लिए कुछ भी करते हैं। कोई रिंग पहनता है, कोई माला पहनता है। देन सेल्फ करेक्शन, ये भी ह्यूमन है कि हम सेल्फ करेक्टिव हैं, बिकॉज वी कैन थिंक ओवर थॉट्स। वी आर डबल डेकर, वी आर द ओनली एनिमल ऑन द अर्थ हु इज डबल डेकर। डबल डेकर मीन्स थिंकिंग ओवर थॉट। हम अपने विचारों के बारे में विचार कर सकते हैं, हमें क्या हो रहा है उसके बारे में भी कर सकते हैं। जब वो करते हैं तब आप ह्यूमन बीइंग होते हैं। अगर थिंकिंग करते हैं आप ह्यूमन बीइंग नहीं, तो थिंकिंग काफी प्राणियों में थोड़ी बहुत होती है, लेकिन when we think our thoughts, at that time we become human beings, not homo sapiens. Unlearning and relearning, unlearning and relearning. अच्छा, ये पढ़ के क्या होगा, क्या होगा ये बताइए। अनलर्निंग का मतलब क्या होता है? Give me some example of, but आपको पूछूंगा अभी इमोशन के बारे में बता रहे। Anybody unlearning? Yes. Eviction of. यही बराबर होता है। इसमें से मैं गलत शब्द निकाल दूंगा। गलत क्या होता है? What is गलत? Which is not right. ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा कुछ होता है which is not right? एक चीज बताओ कि गलत है। एक चीज बताओ। Sir, looking something in a negative sense is known as wrong. कैसा मानो कि ये गलत है, ऐसा बताओ क्या गलत है?
परसेप्शन उसको कैसे लेते हैं? जैसे परसेप्शन, जैसे परसेप्शन। देखो, लर्निंग में कुछ गलत नहीं होता। हम कहते हैं कि देयर इज नो जंकयार्ड इन लर्निंग। लर्निंग में कोई जंकयार्ड नहीं। जो भी आप करते हैं उसमें वो सीखने की सीढ़ी होती है, और एरर एनालिसिस करके पूरा एक क्षेत्र है। उसमें आप एरर करते हैं तब पता चलता है कि कितना सीखे। दैट इज एरर एनालिसिस। एरर है वो नेगेटिव नहीं है, और पूरी मनुष्य जाति कैसे सीखी है? ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर। अगर आप ट्रायल नहीं करते, आप क्रिएटिव नहीं, तो जो गलत है उसको अनलर्न करना नहीं है। जिसको सही मानते हैं उसके ऊपर सोचना है, उसको भी छोड़ देना, उसको भी छोड़ देना। What is wrong? But wrong क्या होता है? Anything, telling lies. Okay, telling lies is wrong. Wrong is Not every time. Not every time. Sir, which is against like the society perception, which is against the society perception. Like for smoking is wrong. If we say according to It is society. legally wrong. सोसाइटी कहती है रॉन्ग है, लेकिन मानो कि इंटरकास्ट मैरिज रॉन्ग या राइट है? आप सोचो, देखो कैसे अंदर कैसे करते हैं। अच्छा, विडो मैरिज, विधवा विवाह, राइट या रॉन्ग है? राइट है। अच्छा, मानो कि जब नर्मद, सूरत में नर्मद था, उसने सबसे पहले किया था गुजराती, और उसको निकाल दिया था, बाहर निकाल दिया। मानो कि आप उस वक्त सूरत में रहते होते तो आप क्या कहते? रॉन्ग कहते हैं, वो तो अब कह रहे हैं, अभी कह रहे हैं। राइट और रॉन्ग नहीं होता है वो परसेप्शन को चेक करना, और परसेप्शन को चेक करना कि ठीक है या नहीं है। सोसाइटी चीजों को अनलर्न करके फिर नया आउटडेटेड, मतलब आपको सोचना है कि आउटडेटेड इसको कहेंगे कि नहीं कहेंगे, लेकिन सही और गलत सोसाइटी ने बनाए हैं। ह्यूमन डोंट क्रिएट। किसी का खून करना ये तो गलत है, गलत है। अच्छा, आपको पता है कि विश्व में सबसे बड़ा खूनी कौन था? अर्जुन। कभी आपने ऐसा कहा है कि अर्जुन खूनी था? बोल सकते हैं? क्यों नहीं बोलते? आप कहते हैं मारना बुरी बात है, बट उसको हमने एपिक में जोड़ दिया तो इसके लिए मतलब सोचो ऐसे मान मत लो। अगर आपने सोचा होता कि इंटरकास्ट मैरिज ठीक नहीं है, लिविंग रिलेशनशिप ठीक नहीं है, 10 साल के बाद अलग हो जाएगा। अच्छा, अभी मैं स्टेटमेंट कहूंगा फ्रॉम साइंस कि ऑर्गेनिक है वो जो भी चीज हमको काम नहीं आती उसको निकाल देना। इसमें कोई लोग सिखाते, बायोलॉजी सिखाते होंगे कुछ को। हाँ, अच्छा, कोई एक सेल कब खत्म होता है? When does a cell die? सेल डाई तो कब, एक कोष कब मर जाता है? कोष को मृत्यु क्या रहता है? क्या रहता है? When it is non-functional, sometimes it can kill itself with the help of lysozyme. Okay, non-function क्यों हो जाता है? non-function क्यों हो जाता है? That is the answer. वेस्ट मटेरियल That's it. जब टॉक्सिक मटेरियल है उसको निकाल नहीं पाता है तब मर जाता है। जब टॉक्सिक जो भी है उसको निकाल नहीं पाता है तो मर जाता है। हम लोग भी अगर अनलर्न नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। जो जितनी भी प्रजाति है उसने अनलर्न नहीं किया मर जाता है। काफी लोगों के घर में इससे नाना नानी दादा दादी माता पिता होते हैं जो अनलर्न नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अभी आप लोग ये कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता, हमारे जमाने में ऐसा नहीं था। हिंदी फिल्मों में आता है हमारे खानदान में ऐसा नहीं होता है। जनरेशन गैप, तो ये जनरेशन गैप नहीं, अनलर्न नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अच्छे लोग हैं, उनको बिठाते हैं, उसको ध्यान करते हैं, खाने के लिए अच्छी चीजें देते हैं, लेकिन उनके साथ बातें ठीक से नहीं करते। आप अपनी काम करो, हम अपना काम करेंगे। तो अगर हम लोगों ने अनलर्न नहीं किया तो मर जाएंगे। जितनी भी प्रजाति जो कौन सी संस्कृति खत्म हो गई,
जो अनलर्न नहीं कर रही है? कौन सी भाषा खत्म हो गई जो अनलर्न नहीं कर रही है? इंग्लिश अनलर्न कर रही है। इंग्लिश इसलिए वर्ल्ड लैंग्वेज बन गई है, वो सभी को लेती है, वो ग्रामर को छोड़ देती है, ग्रामर की जरूरत नहीं है। अभी हम ग्रामर सिखाते भी नहीं थे, गुजराती मीडियम क्लास 10वीं तक ग्रामर का एक भी शब्द नहीं आता, और ग्रामर आपको भी आता नहीं है, नहीं आता, जरूरत नहीं है। ग्रामर की जरूरत क्या है? कोई जरूरत नहीं ग्रामर की। काफी लोग जो बहुत बड़े बड़े लेखक हैं उनको ग्रामर आता होगा क्या? जिनकी कविता आप पढ़ते हैं उनको आप कहो कि इसमें से एडल्ट कोर्स ऑफ रीजन कौन सा है बताओ, तो मार देंगे, वो बोल देंगे। किसी पुलिस वाले से पूछो कि एडजेक्टिव क्या होता है, तो वो जो भी बोलेगा उसमें एडजेक्टिव ही होंगे, लेकिन उसको पता नहीं एडजेक्टिव क्या है। अनलर्न करो, जो है उसको निकालो तो जी पाओ। अगर किसी को पढ़ना है तो वो एक एम्परर ईगल होता है, उसके बारे में पढ़ना है। एम्परर ईगल वो कैसे लंबा चिट्टा है उसके बारे में पढ़ने का एंड रीडर, और बाद में फिर से सीखना। किसी की प्रशंसा करते हैं, कहते हैं कि आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग होनी चाहिए, लेकिन हम आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करते नहीं। और ये सेंटेंस बोलते हैं तो भी हमारे बॉक्स में से बोलते हैं, इसके बाहर नहीं जाते। जैसे मैंने कहा कि इसमें से शौक आना चाहिए, तो आउट ऑफ बॉक्स था, वो नहीं करता। बच्चा भी आउट ऑफ बॉक्स करे तो हमें शौक लगता है, ये क्या 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 लिख दिया। तो इतने में इसमें से 3 आपने कौन से चुने हैं? अभी आपकी प्रायोरिटी क्या है बताओ जरा। 2-3 लोग। Taking challenges one part, yeah. Anybody else? On learning, self-correction. Seeking the unknown also. Okay, also. हाँ, अभी आपने देखा वो 6 हुआ है ना, आपको 3 पहले लिखा था, 3 अभी लिखा। अब आप बताओ कि क्लास में जब आप पढ़ाते हैं तब इसमें से कितना का उपयोग करते हैं और कितना करते हैं? कितना करते हैं? ये जब आएगा तब ह्यूमन लर्निंग होगी। अब तक हम सब ह्यूमन स्टेज में हैं, SUB जैसे इंफ्रारेड होता है उसी तरह इंफ्रा ह्यूमन, वो स्टेज। ह्यूमन में जाने के लिए इसका उपयोग करना पड़ेगा। ये उपयोग करने के लिए क्या करना पड़ता है? ये जो है इसमें से बच्चे सेल्फ करेक्शन करते हैं या आप करेक्शन कर देते हैं, और करेक्शन है वो किसके आधार पे करते हैं? जो पहले से लिखा हो उसमें कोई अलग तरीके से कुछ कहता है तो भी लोग करेक्ट करते हैं। जैसे कि बच्चों को कहा आपने कि ड्राइंग की टीचर थी कोई संगीत वाले की, मानो कि किसी बच्चे ने सूर्य का चित्र बनाया सन और उसमें ब्लैक कलर डाल दिया, तो आप क्या कहेंगे? ब्लैक नहीं होता है। फिर अगर पेड़ कर दिया और उसमें जो लीव्स है उसका कलर ब्लैक या कोई मरून कर दिया, तो आप कहेंगे कि ऐसा नहीं होता। जो मानते हैं कि ऐसा भी ये मेरा पेड़ है, जैसे भी कर रहे मैं करूँगा। सर वो मॉडर्न आर्ट नहीं, मॉडर्न आर्ट कहते हैं, लेकिन मॉडर्न आर्ट भी अभी हो गया, वो भी कोई एक वो रैशनल था। मॉडर्निटी वॉज रैशनल, अभी रैशनल नहीं। वी आर बियॉन्ड रैशनल, क्योंकि रीजनिंग है इज नॉट ए गुड ट्रेड। रीजनिंग क्या होती है? रीजनिंग हमारे टेक्स्ट बुक में रीजनिंग नहीं आती है, क्वेश्चन भी ज़्यादा रीजनिंग के होते हैं। रीजनिंग मीन्स इट्स लाइक ए सीरीज 2, 4, 6, 8। अब बाद में क्या आएगा? 2, 4, 6, 8 क्या आएगा? क्या आएगा? ये रीजनिंग। मानो कि 4 आकृतियां दी हैं, 5वीं कौन सी होगी, तो आप पैटर्न निकालते हैं और पैटर्न के ऊपर काम करते हैं। वो रीजनिंग टेस्ट होते हैं, टेस्ट ऑफ रीजनिंग कहते हैं। अगर ये है तो इसमें ह्यूमन फ्रीडम कहाँ है? तो रीजनिंग ये है, इट इज डिड्यूस्ड फ्रॉम द प्रीवियस वन। जो पहले थे उसमें से डिड्यूस करते हैं, उसको निकालते हैं, उसमें फ्रीडम नहीं है।
इसलिए इंडक्टिव थिंकिंग इज बेटर देन द डिडक्टिव थिंकिंग। हो गया इतना। तो क्या सीखा कि आपके पास जो 6 का लिस्ट बना है वो तो आपने बनाया है, मैंने तो नहीं बनाया है। तो इसके ऊपर आप कैसे काम करोगे, ये काम कैसे करोगे, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मानो कि कोई स्कूल ऐसा है कि जिसमें आपने जो लिखे हैं उसके ऊपर क्लास में पढ़ाते हैं, इस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं, तो आपके बच्चों को वहां रखेंगे आप? रखेंगे? तो यहाँ पढ़ने वाले बच्चे आपके नहीं हैं। तो यहाँ भी हो सकता है। कैसे करेंगे ये चैलेंज है, इसलिए सब्जेक्ट इसलिए दिया है कि अब ह्यूमन लर्निंग तो शुरू करें, करना है तो ह्यूमन लर्निंग शुरू करना है, करेंगे, अभी थोड़ी करते हैं। अब सबसे पहली स्टेप दे दो, इससे आगे इससे आगे। हाँ, ये इतनी सारी ईमेल है, मुझसे कहा गया था, प्रकाश ने कहा था कि हमारे वहाँ काफी लेडीज टीचर है, तो मैंने कहा कि तो इनको ये पढ़ना चाहिए। अरे सबको भेज देंगे आपको फोटो। देखो, इन बोथ इमीडिएट एंड डिलेड, हेलो, in both the immediate and delayed verbal memory, women outperform men. जो शाब्दिक है उसमें women are better than men, वो तो आपको पता होगा। So never try to go to. When asked to memorize a list of 16 items, most women knew the list on the second repetition, 16 items, while men took 5 tries. પુરુષોને 5 વાર વાંચ્યું ત્યારે ખબર પડી કે આમાં શું છે, સ્ત્રીઓ માત્ર 2 વખત માં લીધું કે એટલું છે. After a new interference list was given, એના પછી વચ્ચે એક બીજું લિસ્ટ, એક another list was given as a distraction. Subjects के पात्रों, subjects of the research were later asked to recite the first list. Again, women scored higher than the men on average. बच्चे बीजू नाख्યું તો પેલું વર્બલ યાદ હતું લીધું તો પણ કહી દીધું. સો વર્બલ पावर इज मोर इन विमेन, है ना? अभी देखेंगे। दूसरा, टेस्टोस्टेरोन अफेक्ट्स, क्या लिखा है? स्पेशल क्या होता है? ये क्या होता है? स्पेशल क्या होता है? इंटेलिजेंट होता है। स्पेस के ऊपर से स्पेशल मीन्स रिलेटेड टू स्पेस। ऐसा है कि ज्योमेट्री वो स्त्रियों को कम आती है, ज्योमेट्री पुरुषों को ज्यादा आती है, क्योंकि उसमें वो समतल होता है तो वो कहीं होता नहीं है, लेकिन होता है। यूक्लिडियन ज्योमेट्री है, फिर लबोचोव्स्की की है, रीमैन ज्योमेट्री है, सब आप पढ़े थे। तो 3, 4, 5 किस्म की ज्योमेट्री होती है। Men are generally better than women at the task that involves special ability. Test results prove that men outperform females on tasks that involve mental rotation of 3-dimensional object. मतलब कि ये दिखता है, अगर ऐसे करेंगे तो कैसे दिखेगा, आप इसको ड्रॉ करो, बताओ यार इसको इस तरह से रखा है थोड़ा तो कैसा होगा। तो वो men do better than the women. The reason for this is apparently gender-based and hormonal. Studies were done on the infant who were born with correct male chromosome X and Y. X and Y से होता है ना? देखो X and Y है, इसमें ये जो Y है वो बना है वैसे X से ही, इसका एक पाँव टूट गया है। So man is from the very beginning on the negative side. For women से
ज़्यादा अच्छा स्टडी हो ही नहीं सकता है, नहीं। विमेन इज मोस्ट स्टडी एनिमल कैन बी मेल, क्योंकि उसका एक क्रोमोसोम नहीं हो सकता। Yet lacked receptors for the male hormone testosterone, ये मेल हार्मोन उसमें नहीं था। Later in life, school tests showed these males scored lower than the normal males on tests involving special and mathematical skills. मैथमेटिक्स में आप पढ़ते थे तो कितनी लड़कियां? 3-4। कैसे लाइफ होगी इनकी? ग्रेट कॉम्पिटिशन। अभी भी ज्यादा नहीं है, अभी ज्यादा है, जैसे 20% 30% तक पहुंचे हैं। तो ऐसा कुछ अलग अलग होता है, ठीक है। तो अभी हम ये करेंगे कि एक ऑडियो सुनेंगे और उसके ऊपर थोड़ा काम करेंगे। ये 5 या 6 मिनट का है, इसके बाद ऑडियो है। ये सुनो, बराबर सुनना, इसके ऊपर से फिर थोड़ी हम बात करेंगे, बराबर सुनना। सुना था पहले गीत, कितने लोगों ने सुना था? दिस वन ऑफ माय फेवरेट्स। अभी हमने टेक्स्ट बुक में रखा है, गुजराती की टेक्स्ट बुक में हिंदी गीत रखा है ये, क्योंकि अभी तो ये होगा नहीं कि मल्टीपल लैंग्वेज सिखाना है, तो गुजराती में मराठी भी रखा है और ये भी रखा है। एक थी डाइन करके मूवी था, नाम ऐसा है कि कोई देखने नहीं जाता, मैंने भी नहीं देखी। लेकिन ये गीत किसी ने गाया, पता है कि इसमें गायक कलाकार कौन है? कौन लगता था? आशा भोसले? नहीं, बच्चे की आवाज थी। सही पकड़े हैं। ये पद्मनाभ गायकवाड़ करके एक बच्चा है, 14 साल का, मेन वॉइस है, उसने गाया है। और गीत किसने लिखा है? ऐसा गीत कौन लिखते हैं? राइट, गुलजार। तो अब क्या करना है हमें कि इसमें से आपको जितने भी शब्द याद रहे हैं वो क्या है? आप बोलिए, कितने शब्द आपको याद है? मैं नहीं सुन पाऊंगा ना, एक हाथ खड़ा करके आप बोलिए। अखियां, आ गए, डोंट रिपीट। अपना, सपना, बादल, बादलों का भाला, पाँव, चांदनी, छाँव, ठीक है। और आगे करते हैं कि इसमें थोड़े से मेटाफर है, रूपक है ना। जैसे कि तारों के कंचों से, तो तारों के कंचे है। ऐसे दूसरे भी चीज है कि जैसे जो कि आपने पहले ऐसे फ्रेज नहीं सुने थे, ऐसे फ्रेज पहले नहीं सुने थे। ऐसे फ्रेजेस कौन से है, ऐसे शब्दावली कौन सी है कि जो इसको कविता बनाता है, काव्य बनाता है? एक भूरे भूरे बादल के भालू, तो आपको बोलना है बादल भूरे तो होते ही हैं, लेकिन बादलों के भालू, ऐसा बोलिए। दूसरे कुछ हाथ खड़ा करके, गीली चांदनी, वेरी गुड। केसरी पीले पीले गाँव, जो बादलों के भालू है, सुनाते हैं कि रारा रूरू, तो भालू के साथ रारा रूरू मैच किया। और कोई? सपनों के पाँव, अखियों की डिबिया, क्या? नीला आसमां आया था इसमें, नीला आसमां सो गया। अच्छा,
वो जो सपने के पांव है वो कहाँ थे? ओ, बगुले के पांव डूबे हुए हैं सपनों, जो पानी है वो नहीं है, वहां क्रिएटिविटी है। ऐसा हम क्यों नहीं लिखते हैं? अच्छा नहीं लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? बहुत इमेजिनेशन है और नॉर्मल से डिफरेंट है। डिफरेंट है। नहीं, मजा क्यों आता है इसमें? ब्रेन को क्या कैसे टच करता है? इमोशंस लाता है। हाँ, कोरिलेट करता है। म्यूजिकल तो है, वॉइस भी अलग सा था। अच्छा, ऐसा गीत सुनने से बच्चों को कुछ असर होगा या कुछ दूसरी तरीके से सोच सकते हैं, कर सकते हैं कुछ? तो क्यों सुनाते नहीं है? क्योंकि ह्यूमन लर्निंग नहीं करवाते। आप उसको ह्यूमन बीइंग नहीं मानते कि क्लास में पिक्चर देखे छूट से अलाउड तो है। हाँ, मूवीज है, ये है। तो ऐसे क्रिएटिव सॉन्ग्स कितने सारे होंगे ना? तो ढूंढो, एक पूरा एक फाइल बनाओ और सुनाओ बच्चों को, देखो क्या होता है। अभी देखना ये है कि इसमें तारों के कंचे से थे, तो फिर केसरी भूरे भूरे गांव, पीले पीले केसरी गांव, गीली गीली चांदनी, सपनों के पांव, सपनों के भी पांव होते हैं, गुलजार के सपनों के, भूरे भूरे बादलों के, अखियों की डिबिया है ना। तो अभी अखियों की डिबिया है, जैसे केसरी और भूरे बादल की, भालू जैसे बादल है, तारों के कंचे हैं। तो आपको अब नए तरीके से बनाना है इसको। आप अखियों की डिबिया नहीं कहना है, कुछ दूसरा कहना है। तो क्या लिखोगे? कंचे, तारों के कंचे हैं, तो तारों को आपको कंचे नहीं कहना है, या तो कंचे कहने तो तारों का नहीं कहना है, उसके बजाय दूसरा कुछ कहना है। तो जो भी है वो ट्राई करो, आप लिखो अलग तरीके से, जो भी लिखना है, जो भी लिखना है। एटलीस्ट 2 थिंग्स, एटलीस्ट 2 बातें लिखिए, तो उसका कुछ तो होना ही चाहिए। हाँ, देयर मस्ट बी सम आउटकम, करेंगे कुछ। अब मैं आपको 5 शब्द देता हूँ, वो 5 शब्द लिख लीजिए। और हिंदी में चले, हिंदी इंग्लिश दोनों में देता हूँ, कि गुजराती हिंदी इंग्लिश। एक गुजराती वाला भी है ना, तो मदर टंग को तो यूनेस्को भी कहता है कि मदर टंग में सीखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, बिकॉज मदर टंग इज द लैंग्वेज थ्रू विच यू लर्न अदर लैंग्वेजेस। यूनेस्को के काफी सारे रिसर्च है ऐसे। ओके, फर्स्ट वर्ड इज पतंगियू। पतंगियू इज तितली, तितली, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई। दूसरा शब्द अंधारू, अंधकार, तिमिर, अंधेरा या तिमिर, डार्कनेस, डार्कनेस। देन थर्ड वर्ड इज एकाएक, एकाएक, सहसा, सडनली, सडनली, अचानक, यकायक। चौथा शब्द है, 3 हुए विचार में? ओके, वह है प्रकाश, लाइट। हिंदी में प्रकाश का प्रकाश ही रहूंगा। ये प्रकाश और आकाश शब्द एक काश से ही बने, तो तेजस्वी है। प्र जो ज्यादा तेजस्वी प्रकाश कहते हैं, आकाश है वो कम तेजस्वी होता है। और लास्ट वाला है सपना, ड्रीम, सपना। अच्छा, ड्रीम हो गया। अब आपको ये करना है कि यू हैव टू फ्रेम 1 सिंगल सेंटेंस। अभी चालू मत करो, सुनो। Using all these 5 words, you can add 5 to 7 words from your own. बॉन्डिंग के लिए करना पड़ेगा ना।
तो आपके 5-7 शब्द आप ऐड कर सकते हैं और आपको 1 सिंगल सेंटेंस बनाना है, लेकिन मस्त अच्छा बनाना है कि गुलजार भी शर्मा जाए। साहस कीजिए, दुस्साहस कीजिए। Accomplish the work because I want to do it. अभी तक ये किया ही नहीं था। अभी तक कभी किया ही नहीं। चैलेंज था, क्रिएटिविटी है, मार्क्स ऑफ प्रेशर नहीं। या इसके बारे में एक बात कह दूंगा कि जब दो लोग बातें करते हैं और इंप्रेस की बात होती है तो तभी there are 6 ghostly presence when there somebody wants to impress or want to communicate. एक तो आप जो बोल के कहना चाहते हैं वो, दूसरा आप जो कहते हैं वो, और तीसरा जो सुनता है उसका अर्थ होता है। ईश्वर ये है कि वो आपके बारे में जो कुछ जानता है वो, आप क्या है पता नहीं, आपका मानता है कि ऐसा होगा, फिर ये सुनता है तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या करता है, और तीसरा ये एक्सपेक्ट क्या कर रहा था। इसमें से कुछ भी प्रेजेंट का नहीं है, सभी पास्ट का, इसलिए इसको घोस्ट कहते हैं। तो लेकिन ये भी कोई भी इंटेंशन हो सकता है, डोंट माइंड दैट। આવું ક્લાસમાં થઈ શકે? કેન ધીસ બી ડન ઇન ધ ક્લાસરૂમ? देखेंगे क्या होता है। चलो अभी ये जो अच्छा मैंने पहले वो भालू वाला किया, बाद में ये ऐसा क्यों किया होगा? हाँ भाई वर्षर गिवन ने पहले आपने वो कारों के कंचे ये सब कुछ किया ना, वर्ड बनाना सीखा। ओके, थिंकिंग प्रोसेस, एग्जाम्पल दिया, ये बिलीव कर रहा है। अच्छा, आपको आ सकता है। हाँ, आप जो एक बॉक्स में अंदर बैठे थे, इसके बाहर नहीं जा सकते, और जब ऐसा सुना तो आपको हिम्मत आ गई कि नहीं, वी कैन गो आउट ऑफ दिस। ऐसा भी लिखा जा सकता है और अच्छा भी लगता है और मजा भी आता है। तो आई वाज ट्राइंग टू स्ट्रेच योर इमेजिनेशन, जो कि सो गई है, तो अभी आई होगी, तो देखते हैं कि कैसी लगती है। कौन बोलेगा पहले? हाँ बोलिए। हाँ, फिर से दोबारा। प्रकाश सपना है, प्रकाश सब भर गया। वाह, क्या बात, आई एम इम्प्रेस्ड। વાડું પતંગનું એકાઈ ઉડ્યું, કરી નાનું અંધારું, લઈ સપનું પ્રકાશનું જીવનને જોવાય નીકળ્યું। जीवन में जोवाए निकलू, प्रकाश सपनों लेने। मैंने कहा था कि 5 के 7 शब्द आप ऐड कर सकते हैं। आपने ज्यादा किए हैं। जिन लोगों ने ज्यादा किए हैं उनको मैं अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि मेरा ये जो आपको बॉक्स में बांधने का था 5 या 7, इसके ऊपर भी जाना था। तो कितने गए वो भी देखेंगे। 5-7 कदम उठाएंगे, जितना करवा का था। अंधकारमध्ये प्रकाश અને પતંગી જોયું। સપનાનું પતંગિયું એકાએક મારા જીવનને અંધારે જીવનને પ્રકાશિત કરી ગયું। પાછળ અંધકાર ભર્યા સપનામાં પતંગિયું પ્રકાશ પાથરી ગયું।
મારા સ્વપ્નના આકાશમાં અચાનક ક્યાંકથી એક પતંગિયું આવ્યું અને મારી હતાશાના અંધકારને ઉલ્લાસના પ્રકાશમાં ફેરવી ગયું. हाँ, हताशा अंधकार ने उल्लास. અંધારામાં અચાનક એક પતંગિયું મારી પાસે આવ્યું અને બોલ્યું, ચાલ આપણે આ સપનાના પ્રકાશને માણી લઈએ. सपना प्रकाश इंग्लिश में बोलो यार. हाँ. Butterfly had a dream to move. Butterfly had a dream to move from the darkness to light, and once suddenly Butterfly got a chance to move towards light and happy. देखो इनका जो बटरफ्लाई है उसको सपने आते हैं. अभी किसी का ऐसा बटरफ्लाई था जो सपना आता है. वेरी गुड. वो बटरफ्लाई सडनली टर्न टू लाइट, darkness to light. Last one. देखो आपने जो लिखा है इसमें से काफी पंक्तियां वो ऐसी है जो काव्य है. ऐसी इकट्ठी करके आप लगा सकते हैं बोर्ड पे. और हम लोगों ने इसे 10 मिनट में एक पोएम का कलेक्शन किया है. बच्चों से कहा कि लिखो, अलग अलग से इसे दे दो और लिखने को कहो, तो इसमें से कविता ही होती है. अगर ऐसी प्रैक्टिस आप करते हैं हर महीने में एक बार तो क्या होता है. कर सकते अपने बच्चों से करवाइए, घर में करवाइए, इधर करवाइए. ज्यादा अच्छा करेंगे ना. उनके पास तो अभी हमारे पास जो बॉक्स बन गए हैं इतने बॉक्स नहीं उनके पास. हम बॉक्स बनाते रहते हैं. कृष्णमूर्ति जिसको संस्कार बद्धता कहते हैं, कंडीशनिंग कहते हैं, उसकी कंडीशनिंग बहुत कम होती है, हमारी कंडीशनिंग ज्यादा होती है. तो ये कंडीशनिंग से छूटना है, तब जाके ये होगा. हाँ जरा मोटे थे. आपके सभी पतंगे हैं वो बटरफ्लाई वो डार्कनेस में रहने वाला है. वो चांद की दूसरी दिशा में पिछली वाली दिशा में तो प्रकाश आता है निकल जाएगा. अपने प्रकाश भाई को भी निकाल दिया. कोई बात अच्छा है. इसके से हमें हिम्मत आती रहती है यार, और चार्ज एम्पावर्ड कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी. और इसी तरह इवोल्यूशन होता है. जब म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन से होता है, तो आपके जो सोच में म्यूटेशन होगा ना, थोड़ा म्यूटेशन इट इज नॉट गुड थिंग. म्यूटेशन इज समथिंग विच इज स्पॉइल्ड. सडन चेंज होता है, तो म्यूटेशन से इवोल्यूशन होता है. तो म्यूटेट करना चाहिए. एक ऐसे में लिखा है कभी, इंट्रोड्यूसिंग इम्प्योरिटीज इन एजुकेशन. इंट्रोड्यूसिंग इम्प्योरिटीज इन एजुकेशन. अगर इम्प्योरिटी उसमें डालेंगे तभी कुछ होगा. और ये बेटा फिर मैंने दिया था, आपको पता है जो पर्ल जो मोती बनता है सीप में, वो कैसे बनता है. That's it. ये ऑयस्टर का जो सीप होती है उसमें कोई एक छोटा सा पार्टिकल रेतीनो कण के उनको सुखा भी जाए. एक પોતાને અસર ન કરે એટલા માટે the oyster it covers with its own enzyme. એના પોતાના એન્ઝાઇમ થી એને કવર કરી દે, પછી પાકે ત્યારે મોટી થાય. એમ આપણી અંદર કશું જુદું આવે તો આપણે એનાથી કરીએ છીએ. That's why the Jews of Israel, the brain of the Jew is the best brain in the world. क्योंकि उनको इतने सारे डिफिकल्टीज फेस करना पड़ा. that their brain is the best brain. अब आप देखो नोबेल प्राइज 60% ऑफ नोबेल प्राइज गोज टू ज्यूस. हम लोग तो दाल भात खा के सो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता. ठीक है, तो ये करवाओगे आप क्लास में. इसका असर क्या होगा स्टूडेंट्स से. आपका सब्जेक्ट ही पढ़ेंगे कि उसका ब्रेन अच्छा होगा. दिस इज ऑल्सो ब्रेन एक्सरसाइज. अगर किसी को ज्यादा पढ़ना है तो देयर इज अ मैन कॉल्ड एरिक जेनसन, ERIC, एरिक जेनसन, JENSN, एरिक जेनसन. उसने 8-10 किताब लिखी है ब्रेन बेस्ड एजुकेशन के ऊपर.
एरिक जेमसन, JEMSON, एरिक जेम्स, SON, जेमसन, एरिक, ब्रेन बेस्ड एजुकेशन, टीचिंग विथ ब्रेन इन माइंड, टीचिंग विथ ब्रेन इन हार्ट, कैसे लिखता है बहुत अलग तरीके से लिखता है। तो हम लोग यहाँ तक पहुंचे कि जहां हमें पता चला कि इस तरह से ह्यूमन बीइंग हो सकता है। ह्यूमन बीइंग ऐसा होता है ना, ह्यूमन बीइंग इज ए क्रिएटर। इसने कहा है कि लाइफ ऑफ ए ट्रू ह्यूमन बीइंग इज द लाइफ ऑफ एन आर्टिस्ट। आर्टिस्ट की लाइफ वही मनुष्य की है। प्राणी तो वैसे रहते हैं जिसमें सालों से रहते हैं, लेकिन मनुष्य वो है जो आर्टिस्ट की तरह नया नया नवोन्मेष, न्यू थिंग्स, क्रिएशंस में आते रहते हैं। सो ट्राई फॉर दैट। उनको ही जो लोग जाते हैं MIT में, हार्वर्ड में, वो इमेजिनेशन वाले होते हैं। उसको 100% मार्क मिले, 90% मिले, वो नहीं है। लॉट ऑफ इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, इंस्टिंक्ट, ये सब की जरूरत पड़ती है ना। तो अब देखते हैं कि स्कूल के बच्चों के बारे में कुछ मान्यताएं हैं। वो मान्यताएं हैं, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो वी गो टू दैट थिंग, 50% वाला। हाउ मच डू यू एग्री विद दिस आइडियाज? आपको ये नंबर लिखना है और उसके साथ ये क्या लिखा है? मोर देन 50, लेस देन 50। इसके साथ आप कितना एग्री करते हैं? तो आपके नोट पे 1 से 10 भी 10 है, बाद में भी आएंगे दूसरे में। सबके सामने आपको अपनी A या B लिखना है। मतलब कि स्टूडेंट्स कैन नॉट लर्न ऑन देयर ओन। आप क्या मानते हैं? आप मानते हैं कि आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट मोर देन 50%, तो क्या लिखना है? A लिखना है। इफ यू एग्री लेस देन 50, देन राइट B। इज इट क्लियर? यू हैव टू गिव योर जजमेंट कि आपकी मान्यताएं क्या है। Students cannot learn on their own. Knowledge means compilation of information regarding the content of a subject. A और B. आपको जो लिखना है, दो के साथ। अंग्रेजी में समझाए છે કે ગુજરાતી કરો? સમજાયું છે? એટલે એવા કોઈ છે કે જેને અંગ્રેજી આવડે? Is there anybody who doesn't know English? હાથ ઊંચો કરી. अंग्रेजी में समझिए। The facts of all subjects are already known. जो भी आप टेक्स्ट बुक में आते हैं, तो the facts which are already known, सभी विषय के फैक्ट्स अभी known हो गए, पता है। Students learn what the teachers teach. Students learn what the teachers teach. बच्चे वही सीखते हैं जो शिक्षक पढ़ाता है। एजुकेशन मीन्स एवोल्यूशन एंड एवोल्यूशन मीन्स एजुकेशन। हमारे स्कूल का एजुकेशन बहुत अच्छा है, 100% रिजल्ट आता है। क्या सेंटर से मानते हैं आप? मोर देन 50% या लेस देन 50%? वो आपको कहना है कि एवोल्यूशन हो गया तो एजुकेशन हो गया। एजुकेशन इसका बहुत खराब है क्योंकि 30% रिजल्ट आता है, बहुत बच्चे फेल होते हैं, तो एजुकेशन खराब है। ऐसा मानते हैं क्या? नेक्स्ट, a student's abilities and future career can best be predicted by her grades in the exams. उसकी एबिलिटी एंड द फ्यूचर करियर, उनका आप अगर अंदाज लगाना चाहते हैं, अंदाज लगाओ हो ना, ग्रेड जे लेवल। The best way to prepare best quality person is to outcast low achievers from the school. So नापास से तैयार करता नहीं ने, फेल नहीं करते हैं। तो फेल करने चाहिए, अगर आता नहीं तो क्यों आगे चलेंगे? 5 कक्षा में फेल करो, 8वीं में करो, पहले तो हर क्लास में करते थे, अभी फेल नहीं करते। तो अगर आपको अच्छे चाहिए व्यक्ति, तो जो भी वीक है उनको स्कूल में से निकाल देना, आउटकास्ट कर देना चाहिए। Learning how to get a good job is more important than learn how to learn.
लर्निंग हाउ टू गेट अ गुड जॉब, अच्छी नौकरी कैसे मिले, काम कैसे मिले, इज मोर इम्पोर्टेंट देन किस तरह से हम सीखें, लर्निंग कैसे करें. Creative learners can be prepared from the inactive learners. निष्क्रिय अध्येताओं में से क्रिएटिव अध्येता बन सकते हैं. निष्क्रिय, नॉट एक्टिव, जस्ट सुनते हैं, कथा सुनते हैं, तो उसमें से क्रिएटिव बच्चे हो जाएंगे. लास्ट में, स्टूडेंट्स आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंट्रोल, दे आर नॉट पर्सन्स. बच्चों को तो कंट्रोल करने का होता है. कभी कभी बोलते भी है कि इनका कंट्रोलिंग पावर अच्छा नहीं है. इसे क्लास में काफी आवाज होती रहती है. तो वो दे आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंट्रोल, दे आर नॉट पर्सन्स. वो व्यक्ति नहीं है, दे आर स्टूडेंट्स. मुझे याद आता है, मैंने थोड़े साल हाई स्कूल में काम किया था. तो मैं जब पहले गया तो एक टाउन की स्कूल थी और सभी टीचर बच्चे को बहुत ही मारते थे. तो मैंने कहा मैं मारूंगा नहीं. तो बच्चे मुझे पढ़ाने नहीं देते. इतनी आवाज होती थी कि मेरे बाजू में क्लास में से एक टीचर आएगा, वो मेरे बच्चों को मार के चला जाएगा. और प्रिंसिपल ने मुझे कहा कि आप थोड़ा सा उनको तो कंट्रोल करिए, वरना आप अच्छे टीचर से पढ़ा नहीं पाएंगे. मैंने कहा नहीं, देखते हैं क्या होता है. मुझे 1-1.5 महीना लगा पढ़ाने की शुरुआत करने को. 10 मिनट हो जाता है, चलो सब चुपचाप हो जाते हैं. और बच्चों ने कहा 15 दिन के बाद, सर आप हमें मारो, अगर नहीं मारेंगे तो हम ठीक से नहीं बचेंगे. मैंने कहा नहीं, हम बातें करेंगे, कुछ भी करेंगे, मैं देखूंगा क्या करने में, नहीं करेंगे. 1.5 महीने के बाद उन लोगों ने पढ़ने का शुरू किया. पढ़ने का मतलब शांत रहने लगे. जब कहता था तब आवाज करते थे. वैसे मैंने कहा कि थोड़ी थोड़ी आवाज करो, किसी को अगर बाजू वाले को दिक्कत नहीं है तो कर सकते हैं. और इतना अच्छा चला कि बाद में उस स्कूल में 3-4 टीचरों ने मारना बंद कर दिया, क्योंकि शाहरुख में भी मेरे बारे में डिस्कस हुआ था. तो मैंने कहा कि आप लोग कितने साल से नौकरी करते हैं? तो 15-20 साल से. कितने साल से मारते हैं? तो 20 साल से मारते हैं. तो क्या हुआ, अभी भी मारना पड़ता है, 20 साल के बाद भी मारना पड़ता है. मतलब इट इज नॉट द राइट वे. तो व्हेन यू कंट्रोल, आपको पता है कि हमारा अभी तो कोई मारता नहीं होता, पकड़ के नहीं जाते हैं. लेकिन मैंने वेंट टू यूएस इन न्यूयॉर्क, आई विजिटेड स्कूल. उस स्कूल में बच्चे और टीचर, उनके बीच में एक तार से बने हुए एक डिवाइडर था, तो तार से बांध गया था. जाली थी, एक जाली दोनों के बीच में बने हुई थी. इस और बच्चे, इस और टीचर ने. क्यों बनाई थी? मैं भी वही समझ रहा, लेकिन उन्होंने कहा कि बच्चे टीचर को न मारे इसलिए. That was a cultural shock to me. वरना बच्चे मारते हैं. It was black school. तो बच्चे टीचर को मारते हैं. अभी ऐसी नौबत आएगी हमारे यहाँ कभी, तो आ सकती है. ओके, तो ये लिख लिया आपने? अच्छा, तो यहाँ से शुरू करते हैं. 10 नंबर ए वाले कितने हैं? हाथ उठाइए आपका. ए लिखा है 10 नंबर में. You agree more than that. The students are objects of control. They are not persons. 4-5 लोग हैं. ठीक है. फिर creative learners can be prepared from inactive learners. इसमें कितने ए वाले हैं? अनुस्वार है. See, you agree that creative learners can be prepared from inactive learners. आप इसमें बिलीव करते हैं? उनमें से Yes. बना सकते हैं. Greater than 50 आप मानते हैं इसमें? બરાબર સમજ્યું કે નિષ્ક્રિય વિદ્યાર્થીઓમાંથી ક્રિએટિવ વિદ્યાર્થીઓ બનાવી શકાય છે, એમાં તમે 50% માનો છો.
more than that. बताने के लिए આપણે पर वी गो टू नंबर 7. जो भी अच्छे नहीं उनको स्कूल में से निकाल देना चाहिए. कोई एग्री करता है? कोई नहीं. अच्छा, आगे जाते हैं. इसके आगे वाले हाँ, स्टूडेंट्स कैन नॉट लर्न ऑन देयर ओन. बच्चे खुद अपने आप सीख नहीं सकते हैं. है कुछ 50 नहीं. जब आप क्लास में पढ़ाते हैं याद रहता है ये बात? कि आपको लगता है कि बच्चे को पढ़ाएंगे तो ही सीखेंगे? पढ़ाना तो पड़ता है ना. अभी कोरोना के बाद लर्निंग काफी आ गई है. और आपको बता दूं कि प्रेडिक्शन ये है कि 2045 में स्कूल, सभी स्कूल बंद हो जाएंगे. नो स्कूल 45 में. तब तक आप तो रहेंगे, कुछ लोग रिटायर हो जाएंगे क्योंकि वो पढ़ लेंगे, अपने आप पढ़ लेंगे. अभी पढ़ने लगे हैं. और वहां तक पढ़ा जाता है कि AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है ना, AI. अभी कोई एक स्वीडन या कोई कंट्री जो है ईस्टर्न यूरोप का, लिटरेचर की एक कंपटीशन थी नॉवेल की. किसका नॉवेल सबसे अच्छा है इनाम देते हैं, उसको पुरस्कार देते हैं. गुजरात में भी देते हैं साहित्य परिषद. तो वहाँ 2 नॉवेल ऐसे थे कि जिसके बारे में बहुत ही चर्चा हुई कि इसको पहला, इसको पहला. फिर एक को पहला नंबर दिया, दूसरे को दूसरा नंबर दिया. जिसको दूसरा नंबर दिया उसने बाद में कहा कि ये नॉवेल मैं पुरस्कार नहीं लूंगा क्योंकि नॉवेल मैंने नहीं लिखा है, ये मेरे कंप्यूटर ने लिखा है, मैंने नहीं लिखा है. द होल नॉवेल वाज क्रिएटेड बाय द कंप्यूटर. उसने कहा कि मैंने तो सिर्फ 4-5 आइडियाज किए थे और थोड़े 100-200 शब्द दिए थे, तो वो कंप्यूटर ने बनाए. अभी कंप्यूटर कविता भी बनाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो फिर क्या काम है? अगर आपको इंटरेस्ट है तो एक किताब पढ़ना चाहिए, टेक्स्ट बुक की तरह क्लास में पढ़ना चाहिए. पढ़ा लाया हूँ इसका नाम. किताब का बहुत बड़ा अच्छा नाम है. उसका लेखक है इयान गिलबर्ट. इयान IAN, इयान गिलबर्ट, GILBERT, इयान गिलबर्ट. किताब का नाम है Why do I need a teacher? Why do I need a teacher when I have got, क्या होगा? Google. When I have got Google. ये किताब का नाम है. Why do I need a teacher when I have got Google? और ये 3 साल तक बेस्ट सेलर रहा. इसका इंडियन वर्जन विद्यानगर में से हुआ है. अगर मेरे पास गूगल है तो मुझे टीचर की क्या जरूरत है कि नहीं? काफी ऐसा हो गया है. और अभी रोबोटिक टीचर्स आ गए हैं. रोबोटिक टीचर्स एंड स्टूडेंट्स लाइक इट मोर देन द टीचर्स. क्योंकि टीचर है वो तो उसको आप रोक नहीं सकते हैं. माथा पकाती है, कुछ कहता भी है, आप ऐसे है वैसे है, कुछ काम नहीं करते. उसमें तो किसी होता नहीं है. आप टीचर को कुछ भी कहोगे वो कुछ नहीं ऐसा नहीं बोलेगा. तो रोबोटिक टीचर से उसे पढ़ा देता है. उसके पास रेफरेंस होता है, सभी कुछ आता है. एक शब्द आ गया तो सीधा थिसॉक्स में ले जाएगा, वही ले जाएगा. आपको रेफरेंस, आपको जितना रेफरेंस पता नहीं है वो सब होंगे, सोशल साइंस के, साइंस के, सभी विषय के होंगे. तो टीचर की क्या जरूरत है? तब किस प्रकार के टीचर की जरूरत पड़ेगी? ये आपने जो दिया इसमें पहले में तो आप क्लास में बच्चों को कितने समय तक नहीं पढ़ा करें, उसको ज्यादा तनख्वाह देनी चाहिए. अगर ये सही है तो इतना खुद कर लो. तो मेरा क्या काम है? वो कर सकते हैं और कर भी पाएंगे, क्योंकि करने नहीं देंगे तो कैसे करेंगे? वो आपको पता होगा कि थोड़े बच्चे तैरने के लिए नदी में गए. नदी, एक बच्चा बाहर बैठा था
सबने कहा कि आजा अंदर आजा, मजा आता है। तो कहा कि मेरी मम्मी ने कहा है कि जब तक तैरना नहीं आता है पानी में मत जाना, जब तक तैरना नहीं आता है पानी में मत जाना। कैसे सीखेगा? हम लोग ये क्लास में कर रहे हैं, खुद को पूछो। हम कहते कि ऑटोनोमस लर्नर, बच्चे स्वायत्त है, खुद सीख जाएंगे, लेकिन सीखे देते कहाँ? जब साइकिल सिखाते हैं बच्चों को तो पहले कैरेट पकड़ के रखते हैं, लेकिन पकड़ के रखो तो सभी को पता है कि छोड़ देना चाहिए, लेकिन क्लास में छोड़ते क्यों नहीं हो? एक्स्ट्रा क्लास लेते हो, नहीं छोड़ेंगे। If you don't allow them to learn, how will they learn? कैसे सीखेंगे? It's not possible. नहीं सीख पाएंगे। Knowledge means combines of information regarding content of a subject. इसमें से 50 से ज्यादा, greater than 50 कोई नहीं। तो knowledge किसे कहते हैं? सब्जेक्ट में अगर उसकी इंफॉर्मेशन सब है, कंपाइल कर ली उसने, तो नॉलेज कहेंगे। देखो, नॉलेज इज अ सब्जेक्ट ऑन विच वी कैन टॉक फॉर द होल डे। अभी नॉलेज कंस्ट्रक्शन इज द मैटर फॉर एजुकेशन की क्लास में नॉलेज कंस्ट्रक्शन होती है कि नहीं है? और नॉलेज उसे कहते हैं जो अप्लाइड होती है। मानो कि देयर इज अ बुक पब्लिश्ड बाय नवजीवन प्रेस and the title is Art of Swimming, तरण कड़ा, तरवानी कड़ा, ये चौपड़ी से 10 रुपये नहीं जा रही। Suppose I prescribe that book in the class कि आप ये सिखाओ, और आपने मल्टीमीडिया से ये करके वो करके सिखा दिया। कौन सा सिखा दिया? आर्ट ऑफ स्विमिंग। फिर आपने एग्जाम दिया और सभी स्टूडेंट के 90+ मार्क आए, सभी स्टूडेंट के, और बाद में आप जाके उनको डालो स्विमिंग पूल में, क्या होगा? क्या होगा? डूब जाएंगे। क्यों? प्रैक्टिस नहीं किया, प्रैक्टिकल नहीं किया, थ्योरी किया है। तो जो भी अच्छा पढ़ा वो होता है, उसका लाइफ अच्छा होता है? अच्छा ही होता है। स्टडी तो ये है कि इसको ये भी कहते हैं टॉपर सिंड्रोम, ऐसे करके रिसर्च है, टॉपर सिंड्रोम। जो टॉपर रहे होते हैं, टॉपर होते हैं ना JEE में या IIT में, सभी में, उनकी लाइफ अच्छी नहीं चलती है, क्योंकि उनको दूसरा कुछ आता ही नहीं। सोच लो, अगर आपका हस्बैंड ऐसा है कि बहुत ब्रिलियंट है, लेकिन एक इकोनॉमिक्स से आती है या तो टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में आती है, तो उसके साथ क्या बोलोगे? उनको पता नहीं कि केसरी केसरी गांव होते हैं, सपनों के पांव होते हैं, तो उसके साथ जीवन कैसे जाएगा? वो कभी स्कूल से भागा नहीं, सब कुछ होमवर्क किया है, कभी लड़कियों के पीछे नहीं गया है, इसको एक्सपीरियंस ही क्या है? तो टॉपर सिंड्रोम है ये, और हम लोग टॉपर बनने की ट्राई करते हैं। फियर टू अदर जो सब फियर ऑफ फेलिंग है, उसे फियर ऑफ फेलिंग है। लेकिन काफी लोग ऐसे हैं कि जो बहुत अच्छा नहीं किया। वो अभी विश्व के जो टॉप 25 CEO है, वो सभी लोग मातृभाषा में पढ़े हुए हैं, ऑल 25। और यहाँ गुजराती मीडियम खत्म होता जा रहा है। ठीक है, तो नॉलेज कंस्ट्रक्ट करनी पड़ती है। कंस्ट्रक्ट करने के लिए टाइम देना पड़ेगा। अभी हम करेंगे नॉलेज, अभी इसके बाद में कंस्ट्रक्ट करेंगे। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट्स आर ऑलरेडी नोन, सब्जेक्ट का फैक्ट्स है वो नोन है, 50 से ज्यादा नहीं। देखो, जो भी है सब्जेक्ट में वो अभी हम जो मानते हैं वो है, लेकिन डेवलपिंग है ना, तो डेवलप हो जाएगा। साइकोलॉजी जब आप पढ़े थे, नई साइकोलॉजी आ गई, मैनेजमेंट नया आ गया, टेक्नोलॉजी नहीं आ गई है, फिर भी हम वही रटाते हैं कि टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है, टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है, वही करो। टेक्स्ट बुक इज इट दैट क्रिएट्स अ बॉक्स, उसके बाहर नहीं जाना पड़ता। स्टूडेंट्स लर्न व्हाट द टीचर टीच। सही बात है नहीं?
फिर भी आप कितने ट्राई करते हैं। और यहाँ काफी लोग ऐसे बैठे होंगे कि जो अपने टीचर से अच्छे हैं, अगर टीचर ने सिखाया वही जो सीखे होते हैं तो शायद यह ना भी होते। ऐसे भी टीचर थे ना जो हमें लगता था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वो भी एक आइडियल है नहीं करने का। तो फिर आप जब करते हैं तो ये मानते हैं कि मैं सिखाऊंगा तो ही उनको आएगा। काफी टीचर होता है कि कोई पण बात हो गड़े उतरावी दो, गड़े उतरावी देवो, वो भी अच्छा नहीं है। जैसे बच्चे को कोई दवा देनी है तो बेलन डालते हैं मुंह में, नाक बंद कर देते हैं, इस तरह बच्चे को उतार देते हैं। और एजुकेशन मीन्स इवोल्यूशन, इवोल्यूशन मीन्स एजुकेशन, ये भी नहीं है ना। आप बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन ये मुझे सबसे पहले दिखाने का था। इतनी बात दिखाया तो उसका असर हो सकता है शायद। तो ठीक लगता है आपको? इसके ऊपर से आपका प्रैक्टिस अलग हो सकता है, हो सकता है। आपको एक स्टेटमेंट में बोलूंगा, एक विधान में कहूंगा, आपको यस और नो कहना है। एग्री होना है तो एग्री नहीं होना। ये इसके बारे में है, जो आपने किया उसके बारे में है। इसका उत्तर देने के लिए आप दोनों फिर से बात कर सकते हैं उत्तर देने से पहले। मतलब कोई एक जन ऐसा नहीं, दोनों को पता होना चाहिए क्या हो रहा है, ठीक है? मतलब करने के बाद एक दफा पढ़ लिया। हैव यू रेड द पैराग्राफ अगेन? वेरी गुड, गुड स्टूडेंट्स। अच्छा, फर्स्ट सेंटेंस इस पैराग्राफ में ज्ञान संरचना कैसे होती है वह समझाया गया है। आपको यस और नो कहना है। हाथ उठा के। इस पैराग्राफ में ज्ञान संरचना कैसे होती है वह ओके। ऐसा करते हैं कि आप यस नो कहेंगे पता नहीं चलेगा, तो हम ये करते हैं कि आपको अगर यस कहना है तो हाथ ध्यान रखना है, ये यस है, ठीक है? और हाथ ऐसे करना, वो नो है। उल्टा है वही करना चाहिए, क्योंकि ब्रेन हमारा वो जो राइट ब्रेन है वो काम नहीं करता, इसको काम करना है। तो ये यस है, ठीक है? और ये नो है। तो आप दोनों एक दूसरे को पूछ के कर सकते हैं। अब फिर से इस पैराग्राफ में ज्ञान संरचना कैसे होती है वह समझाया गया है। स्क्वायर बाय दैट। अच्छा, सही है, सही है। जैसे जैसे अनुभवों में बढ़ोतरी होती है वैसे ज्ञान में भी बढ़ावा होता है। यह सही नहीं है, ये नो वाला है। देखो, एक दो ने हाथ ऐसा किया था, लेकिन देखा दूसरे वालों को सभी ये से तो वो भी ठहरा बसा नॉट दैट। जैसे जैसे अनुभव में बढ़ोतरी होती है वैसे वैसे ज्ञान का भी बढ़ावा होता है। इसमें आपने यस कहा। हाँ, अच्छा, अब आगे में पढ़ना, आगे में पता चल जाएगा, लेकिन द आंसर इज नॉट यस। दूसरा है, इसमें आलोक शब्द आता है ना, आलोक। तो आलोक का अर्थ सूर्य प्रकाश होता है। आलोक का अर्थ सूर्य प्रकाश होता है। कुछ तो बताना है आपको, यस और नो कुछ कहना है ना। आलोक का अर्थ सूर्य प्रकाश होता है कि हाँ? नहीं होता है। कुछ और मतलब है वो, ठीक है, लेकिन क्या मतलब है पता नहीं। आलोक का मतलब सूर्य प्रकाश नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट। क्या कंटेंट नहीं होता? आलोक मतलब शायद कॉन्टेक्स्ट जो हमारे पास ऑलरेडी है। यहाँ कॉन्टेक्स्ट नहीं, इसमें जो कॉन्टेक्स्ट दिया गया है इसके ऊपर पूछ रहा हूँ। इस पैराग्राफ में जो दिया गया है उसमें आलोक का अर्थ सूर्य प्रकाश होता है? हाँ, तो नहीं है तो क्या करना है? अभी समझिए। अच्छा, हम अपनी 5 इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करते हैं।
हम पांचों इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करते हैं। ओके, जिन लोगों ने हाथ खड़े किए हैं, नो कहा है, वो बात सही है। इसका मतलब नो करेंगे क्या? नो नहीं, पांच में से ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, अनुभव से। देखते अनुभव से भी नहीं होता है, वो भी आ गया ना, सुनते जाओ। क्या आगे आया था कि अनुभव में बढ़ोतरी होती है, एज यू मोर एक्सपीरियंस यू मोर नॉलेज, ये भी नहीं है, ये पैराग्राफ नहीं है, ये पैराग्राफ नहीं है। हाँ, बाद में मस्तिष्क में रचा गया नया ज्ञान भविष्य में होने वाले अनुभवों के अध्ययन के लिए पुराना ज्ञान का काम करता है। मस्तिष्क में रचा गया नया ज्ञान भविष्य में होने वाले अनुभवों के अध्ययन के लिए पुराना ज्ञान का काम करता है। यस और नो? बताओ, दिखाओ, मुझे देखना चाहिए। यस देखो, हाँ, यस इज द राइट आंसर। हाँ, वो नया ज्ञान लेके जब जाते हैं दूसरे अनुभव में, तो वो अनुभव से देखते हैं, वो पुराना हो जाता है, फिर नया आता है। ठीक है, नेक्स्ट इज नए अनुभव पुराने ज्ञान को बदल देता है। नए अनुभव पुराने ज्ञान को बदल देते हैं। नहीं, एक नो वाले सही है। अनुभव नहीं बदलता है, इससे पहले भी आ गया, फिर गया, इसके पहले दो बार आ गया कि अनुभव से ज्ञान बढ़ता नहीं है। ओके, ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में व्यक्ति अपनी ओर से जो अर्थ करता है उसका महत्व सबसे ज्यादा है। फिर से, ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में व्यक्ति अपनी ओर से जो अर्थघटन करता है उसका महत्व सबसे ज्यादा है। अर्थघटन, इंटरप्रिटेशन, ये यस है, ये यस वाला यस है। और सबसे, आप एक शब्द लिख लो, पुराना ज्ञान। और फिर एक पंक्ति छोड़ दो, एक लाइन छोड़ दो, दूसरे में लिखो कि स्मृति का हिस्सा बन जाना। स्मृति का हिस्सा बन जाना, पार्ट ऑफ मेमोरी। तो हम शुरू करते हैं पुराने ज्ञान से, और फिर नया ज्ञान स्मृति का हिस्सा बनता है। उसके बीच में कौन से स्टेप आते हैं, वो स्टेप आपको लिखने हैं बीच में। इसके बीच में कौन कौन से स्टेप आते हैं आपके माइंड में से नहीं लिखना है, इसमें जो कहा है वो जो कहा ना कि उसको तरण कला है, स्विमिंग, आर्ट ऑफ स्विमिंग, फिर डाल दिया आपने स्विमिंग पूल में, तो आपके माहिती, उनकी इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन के साथ ही डूब जाएंगे। विथ इंफॉर्मेशन दे विल गो टू द बॉटम। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन उसको ज्ञान में पलटने के लिए, ज्ञान में कंस्ट्रक्शन करने के लिए वी हैव टू रिफ्लेक्ट ऑन दैट, वी हैव टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट, तभी होता है। बस करें तो हमारे यहाँ चिंतन मनन होता है ना, वो चिंतन मनन की प्रणाली इसलिए थी, जो मेडिटेशन करना है, कंटेम्पलेशन करना है, तब जाके ज्ञान होता है। एक बात को पढ़ने से ज्ञान नहीं होता है। ये किसने लिखा पता है किसी को? ये किसका हो सकता है? आपने जियान पियाजे का नाम सुना है? जीन पियाजे। हाँ, जियान, उसको जियान बोलते हैं, जीन भी चलेगा, जीन पियाजेट। हाँ, वो स्विच था, वो साइकोलॉजिस्ट भी था, वो जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट था। जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी एपिस्टेमोलॉजी ज्ञान का शास्त्र, तो उसका कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं। अभी हमारे सभी टेक्स्ट बुक उसके ऊपर से बनते हैं, एनसीईआरटी में और गुजरात में। दिस इज द कोर पार्ट हाउ टेक्स्ट बुक्स आर क्रिएटेड। लेकिन क्लास में जाता है तो बदल जाता है। क्लास में आप
उसको पुराना बना देते हैं कि पुराना ज्ञान कितना है। हम सभी सब्जेक्ट में हिस्ट्री पढ़ाते हैं, ऑल सब्जेक्ट्स आर हिस्ट्री, है ना। साइंस सिखाते हैं तो कोपरनिकस ने क्या किया, गैलीलियो ने क्या किया, फिर उसने क्या किया, आइंस्टाइन ने क्या किया, उसने हिस्ट्री आता है। गुजराती में हिस्ट्री आता है, नरसिंह मेहता, मीराबाई, रघुवीर चौधरी, सभी में वी टीच हिस्ट्री। एंड हम कहते हैं कि हम बच्चों को फ्यूचर के लिए तैयार कर रहे हैं। नाउ यू कैन नॉट टीच भूतकाल एंड क्रिएट पर्सन्स फॉर भविष्य काल, लेकिन ये कर रहे हैं तो नहीं होते हैं। वी आर नॉट हैप्पी विद व्हाट्स गोइंग ऑन। तो इसको फिर से पढ़ना है, एकदम इसके ऊपर डिस्कशन भी कभी कर सकते हैं सर, ठीक है। ये कैसा लगा ये काम? अगर मैंने पूरा पैराग्राफ लिख दिया होता और कहा होता कि पैराग्राफ पढ़िए, तो आपने पढ़ा होता? नहीं पढ़ा होता, इतनी तीव्रता से नहीं पढ़ा होता ना, दिस मच इंटेंशन। तो बच्चों को भी अगर आप ये दे दें तो उनको ये करने में कितना आ जाता है। दिस हाउ नहीं पढ़ाना, मैं पढ़ाऊंगा नहीं, आप ट्राई कीजिए, वो कर सकते हैं, ये कर देंगे। आप कोई डेफिनेशन दे दीजिए, उसमें से थोड़े शब्द निकाल के नीचे रख दीजिए, बच्चों को फिट कर दो। कौन सी डेफिनेशन जो कभी नहीं सिखाई वो, तो बच्चे कर देंगे। लेकिन जाके पहले डेफिनेशन लिख देते हैं, आई विल एक्सप्लेन दिस डेफिनेशन फर्स्ट। अरे मत करो, नहीं सीखना है तो करो। तो आज इतना रखते हैं, रनिंग आउट ऑफ टाइम। मैंने 10 मिनट ज़्यादा, कितना 2 बजे है, तो प्लीज लेट्स हैव 5 मिनट्स फॉर फीडबैक। आज यहाँ जो कुछ भी हुआ उसमें से आपको कौन सी